Dear students, myself Bishwajit Bishwas, Assistant Professor, Pragati College of Education, দাগাপুর শিলিগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট দার্জিলিং। আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই সুস্থ আছো এবং ভালো আছো। আমরা গত 2-3টে ক্লাস ধরে আমরা আলোচনা করছিলাম ইউনিট 5 কোর্স 7 এর ইভ্যালুয়েশন ইন সোশ্যাল সায়েন্স এডুকেশন এই বিষয়টি। আমরা আজকের দিন পর্যন্ত ইভ্যালুয়েশন ডিভাইস, ইভ্যালুয়েশন প্রোগ্রাম ইন সোশ্যাল স্টাডিজ, CCE continuous and comprehensive evaluation, formative and summative evaluation, and last diagnose and remediation এই বিষয়গুলো আমরা অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি। So dear students, today we will learn about very interesting topic, achievement test. So what is achievement test? How can you construct achievement test? Today we will learn. Let's go. Actually, achievement test is most probably the very important area of appraisal for a guidance program for the benefit of the individual. Scores on achievement test are excellent means for evaluating educational attainments and for the individuals in the concerned area of the subject covered by the test. It involves determination of how quickly, how accurately, and at what level an individual can perform the task taken to the present accomplishment. It measures present proficiency, mastery, and understanding of general and specific areas of knowledge. It also attempts to measure what and how individual has learned. The place and importance of achievement test is sincerely realized by the teachers and guidance workers to offer guidance and counseling service to the students at present. So generally we can say achievement test is designed to assess people status in different school subjects, in different areas and in different content. So this is about achievement test. So dear students, let us go. Today we will discuss about achievement test, B.Ed second semester, course 7A, unit 5, and already I have introduced myself, Bishwajit Bishwas, Assistant Professor, Pragati College of Education, Shiliguri District, Darjeeling, West Bengal. So what is achievement test? Before going to introduce, before going to discuss the achievement test, what is achievement test, just we will follow some different kind of test. Suppose number 1 is intelligence test. Teachers can test intelligence of the pupils through intelligence test tools. Personality test, this is one kind of different test. Aptitude test, performance test, achievement test, comprehensive exams, standardized test, teacher made test, other categories, and other categories also some testers there, that is placement, diagnostic, achievement, proficiency, criteria reference test, non-reference test, formal and informal. So these are the different kinds of test: intelligence test,
personality test, aptitude test, performance test, achievement test, comprehensive exam, standardized test, teacher made test, and also placement, diagnostic, achievement, proficiency, criterion, non-reference, and formal and informal test. So, let us go, we will discuss today achievement test. What is achievement test? Achievement tests are designed to measure the knowledge and skills students learned in school or to determine the academic progress they have made over a period of time. The test may also be used to evaluate the effectiveness of a schools and teachers, or identify the appropriate academic placement for a student, that is what course or programs may be deemed most suitable, or what forms of academic support they may need. Achievement tests are backward looking. In that way, measure how well students have learned what they were expected to learn. According to Thorndike and Hagen 1969, the type of ability test that describes what a person has learned to do is called an achievement test. আসলে অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট, যেটার বাংলা হচ্ছে পারদর্শিতার অভিক্ষা। পারদর্শিতার অভিক্ষা বলতে আমরা বুঝি কোনো কিছু দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করা। এক্সাম্পল, সাপোজ ড্রাইভ করতে জানি, সো ড্রাইভ যে আমি করছি, ড্রাইভ করাটাও এটা একটা দক্ষতার হতে হবে, আদারওয়াইজ অনেকেই আমাকে বলবে ড্রাইভিংয়ে আমার ট্রেনিং নেই, আমি আনট্রেন্ড, আমি ড্রাইভার। সো যখনই আমি ট্রেনিং নেব ড্রাইভিংয়ে, দ্যাট মিনস ড্রাইভিংয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়গুলো যেগুলো আছে সেগুলো আমি টু দ্য পয়েন্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবো, বুঝতে পারবো। তো যখনই আমি একটা গাড়ি স্মুথলি একদম সিস্টেমেটিক্যালি চালিয়ে যাব, তখন সেটা আমার দক্ষতার পরিচয় দেবে। সো কোনো কিছুকে একটা দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করাকে বলা হয় পারদর্শিতা। যেমন শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমের মধ্যে ক্লাস টেস্ট হচ্ছে, ক্লাস টেস্ট হওয়ার পরে সেটার একটা এক্সাম দিচ্ছে, ক্লাস টেস্টের রেজাল্ট যখন বেরোলো, পার্টিকুলার কিছু স্টুডেন্টের রেজাল্ট খুবই ভালো হলো এবং পার্টিকুলার কিছু স্টুডেন্টের রেজাল্ট খুব খারাপ হলো। এবার যাদের ভালো হলো, অ্যাকচুয়ালি তাদের যে অ্যাচিভমেন্ট, তারা যে কন্টেন্টটা পড়েছে, সেই কন্টেন্টটার মধ্যে যে ইনফরমেশন অ্যাচিভ করেছে, সেই ইনফরমেশনটার একটা আউটপুট এরা দিচ্ছে নিজেদের পারদর্শিতা দেখাতে গিয়ে। সো প্রশ্ন হচ্ছে, এই অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট ফর দ্য স্টুডেন্টস একজন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করার জন্য আমরা ব্যবহার করব। কিন্তু তাহলে আমরা এই কোর্সে কেন অ্যাচিভমেন্ট টেস্টটা আমরা পড়ব? একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, বিকজ we have to learn here, because you are the trainee teachers. After complete your B.Ed degree, that time you will be the teachers. So during class, and during session, as a teacher, you have to conduct so many time tests, and you have to evaluate your learners so many times. So that time you apply this method. How you will test your learners, how you will test your performance of the learners. তাই আমাদের এই বিষয়টি এই কোর্সের মধ্যে ইনক্লুড করা হয়েছে। সো এটি হলো অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট। সো নেক্সট ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ গুড অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট। একটা ভালো পারদর্শিতার অভিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি হতে পারে? এ গুড অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট ইজ ট্রাইড আউট অ্যান্ড সিলেক্টেড অন দ্য বেসিস অফ গুড ইটস ডিফিকাল্টি লেভেল অ্যান্ড ডিসক্রিমিনেটিং পাওয়ার। অ্যাকচুয়ালি अचीवमेंट टेस्ट বিষয়টা জাস্ট আমি সংক্ষেপে একটু বলছি। ये एक्चुअली होता है, आपको कुछ सिस्टम, कुछ प्रोसीड्योर मेंटेन करके आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा।
suppose before going to the test, before going to the evaluate your learners, just you have to maintain few steps. सपोज आप 25 मार्क्स का एक एग्ज़ाम लेंगे, एक टेस्ट लेंगे स्टूडेंट्स का, तो 25 मार्क्स का टोटल मार्क्स है 25 और आपका यूनिट है एक ही यूनिट, और सपोज मान लीजिए 2 यूनिट, सो फ्रॉम 2 यूनिट्स 25 मार्क्स आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है. सो व्हिच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू विल सिलेक्ट. आप जानते हैं आपको नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से, एप्लीकेशन से, स्किल से, चारों तरफ से आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो इसके लिए आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. जैसे कि नेक्स्ट क्लास में, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम सिखाएंगे आपको हाउ टू कंस्ट्रक्ट अचीवमेंट टेस्ट. जस्ट ये आज इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इसके बाद हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अचीवमेंट टेस्ट. सो उसमें आपको 4 टेबल बनाना पड़ेगा. 4 टेबल मीन्स आपका 25 मार्क्स है. सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, नंबर 1 टेबल. नंबर 2 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स. Number 3 marks distribution according to the types of questions, and number 4 marks distribution according to the expected time. So ये 4 टेबल आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा. देन आप सुने होंगे ब्लूप्रिंट, उसके बाद आपको ब्लूप्रिंट करना पड़ेगा. ब्लूप्रिंट करने के बाद आपको टेस्ट आइटम देना पड़ेगा. जो टेस्ट आप ये 4 टेबल में आप मेंशन किया था, उसी टेबल से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा टेस्ट आइटम. और टेस्ट आइटम ये कंप्लीट करने के बाद आपको उसका रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जांच करना पड़ेगा. सो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट. सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट शुड हैव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर्ड बिहेवियर. थर्ड, इट शुड कंटेन ए सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स फॉर ईच मेजर्ड बिहेवियर. नेक्स्ट, it should divided into different knowledge and skills according to behaviors to the measured. It is instructions in regard to its administering and scoring are so clear that they become standardized for different users. It is accompanied by norms which are developed at various levels and on various age groups. Next, it provides equivalent and comparable forms of the test, and last one is it carries with it a test manual for its administering and scoring. So these are the basic characteristics of good achievement test. So now the classification of achievement test. So different types of achievement test are there. So we will discuss what are ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म यूज्ड. देखिए यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से इसको डिवाइड किया है, क्योंकि एक डायरेक्टली हम इसको डिवाइडेशन नहीं दिखाया, क्योंकि डिफरेंट एंगल से डिफरेंट टाइप्स का अचीवमेंट टेस्ट होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म यूज्ड, फर्स्ट इज ओरल टेस्ट, जो वर्बली एग्जाम लेते हैं आप स्कूल में, वही है ओरल टेस्ट. सेकेंड, रिटन टेस्ट. देन on the basis of various purpose such as various purpose के हिसाब से ये टेस्ट डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, पावर टेस्ट, स्पीड टेस्ट, एक्यूरेसी टेस्ट, क्वालिटी टेस्ट, रेंज टेस्ट. On the basis of organization of test, यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, देन पीरियड ऑफ टाइम लिमिट हुई एज फॉलोज. ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम लिमिट्स, यहाँ पे भी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स का है. डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, टर्म टेस्ट, एनुअल टेस्ट.
and last one is on the basis of method, like one is standardized test and one is teacher made test. So standardized test, what is standardized test, मैं एक वीडियो में डिस्कस किया था, तो और व्हाट इज टीचर मेड टेस्ट. सो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एक्चुअली we can say it is scientific way. Scientific way means it is perfect, it is accurate, because accurate जब बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है, ये बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन में जब प्रिपेयर किया जाता है उससे पहले एक प्लानिंग होता है. देखिए सम स्टेप्स आर देयर. फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर प्लान, देन उस प्लान को आप एग्जीक्यूट करेंगे, देन उस प्लान को आप रिव्यू करेंगे, देन उस प्लान को आप डिफ़िकल्टी निकालेंगे, वेदर आप जिस बच्चे के लिए क्या है वो बच्चे के लिए ये क्वेश्चंस ठीक हुआ या नहीं हुआ. तो ये सब करने के बाद आपको वो क्वेश्चंस पेपर को फाइनलाइज करना पड़ेगा, प्रिंट में देना पड़ेगा. सो ये जो डिग्री होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट उसी लेवल में होता है जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन, एमए, बीए, एमए, जो डिग्री आपका प्लेसमेंट में फ्यूचर में आपको काम लगता है. टीचर में टेस्ट इट इज़ सडन. टीचर अपना मन से ये टेस्ट लिया जाता है, जैसे कि डिफरेंट यूनिट टेस्ट, डिफरेंट क्लास टेस्ट और हाफ ईयरली टेस्ट. कभी कभी स्कूल में एनुअल टेस्ट भी टीचर अपना मन से क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो ये टीचर मेड टेस्ट. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट. नेक्स्ट, यूज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट. तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे? टू इवेलुएट the extent to which the aims and objectives of education have been achieved. For evaluating and improving the curriculum meant for the students of different grades. Actually एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. एक करिकुलम जब फ्रेम हो रहा है, ये करिकुलम को भी इवेलुएट किया जाता है. मैंने लास्ट जब करिकुलम डिस्कशन किया उसमें हम डिस्कस किए थे, बोले थे आपको, जैसे कि एक करिकुलम जब इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका रिजल्ट, उसका फीडबैक आपको 1 साल बाद ही मिलेगा, क्योंकि 1 साल बाद उसका एग्ज़ाम होगा बच्चे का. एग्ज़ाम होने के बाद आपको वो रेशियो मिलेगा बच्चे कितना परसेंटेज तक परफॉर्मेंस अच्छा है, कितना परसेंटेज तक परफॉर्मेंस बिलो है, बिलो एवरेज है. सो ये आप इवेलुएट करेंगे करिकुलम को. सो एक्चुअली ये अचीवमेंट टेस्ट आपको बच्चे को इवेलुएट करेगा सेम इसी हिसाब से बच्चे का ग्रेड लेवल, बच्चे का जो ग्रेड मिलता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इसी लेवल को आप इवेलुएट कर सकते हैं. सो बच्चे का प्रोग्रेस कितना हो रहा है, रिग्रेस कितना हो रहा है, बच्चे क्यों प्रोग्रेस हो रहा है, क्यों रिग्रेस हो रहा है, ये टोटल आप यहाँ पे जांच कर पाएंगे. नेक्स्ट इज helpful for purpose of identifying and classifying the students in the various groups. Actually आप जब ये क्लासरूम में होता है, टीचर्स जो फर्स्ट बॉय है, जो सेकंड बॉय है, उनका नाम हर टाइम टीचर्स को याद रहता है. क्यों? क्योंकि दे आर टैलेंटेड. वो लोग फर्स्ट है, वो स्टूडेंट्स फर्स्ट है, वो स्टूडेंट सेकंड है, उसका जवाब बहुत अच्छा देता है, वो क्लास में बहुत शांत रहता है, क्लास में बहुत एक्टिव रहता है. लेकिन जो 50 है रोल नंबर, 60 है, 70 है, 90 है, उनका नाम याद नहीं रहता है. सो ये टीचर्स को हेल्प करेगा ये डिफरेंट ग्रेड बनाने के लिए, डिफरेंट फेज बनाने के लिए स्टूडेंट्स का. जैसे कि 1 to 10, रिजल्ट 1 to 10 दे आर लेवल 1, 10 to 30 लेवल 2, 30 to 40 लेवल 3. आप जब लेवल आप फ्रेम कर पाएंगे, जब आप लेवल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तब आप अपना हिसाब से आप स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्टूडेंट्स को लर्न टीचिंग करा सकते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं. दैट मीन्स बेनिफिटेड होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप उस लेवल के हिसाब से उन लोग को ट्रीट कर रहे हैं. सो इट इज़ हेल्पफुल पर्पस टू गिव प्रमोशन टू द स्टूडेंट्स to the next higher class.
और न्यू कोर्स कंसिडरिंग द ऑब्टेन्ड रिजल्ट। ऑब्वियसली आप एक क्लास से दूसरे क्लास पे जब जा रहे हैं, उस क्लास को आप अच्छा रिजल्ट करके आप दूसरे क्लास में गया है। जैसे कि 12 पास करने के बाद आपको जैसे ग्रेजुएशन पास करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑनर्स मिलता है, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? वो परफॉर्मेंस, अचीवमेंट। तो आप जो 3 साल में पढ़े हैं, वो 3 साल का जो आपका परफॉर्मेंस था, वही परफॉर्मेंस को आपको निकाला गया है लास्ट ईयर में। वही परफॉर्मेंस को कैलकुलेशन करके रैंक बनाया जा रहा है, आपका चांस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए आपको ये हेल्प करेगा। टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप अवार्ड्स एंड स्पेशल अवार्ड टू मेरिट टू द स्टूडेंट्स। आप देखते होंगे बहुत सारा जगह पे है, बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से भी है, जैसे कि SC ST OBC ये सब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाता है। कभी कभी आप देखिएगा गवर्नमेंट की तरफ से जो दो स्टूडेंट्स हु आर ब्रिलियंट, दो स्टूडेंट्स हु आर obtained the above 90% marks in every class, in 10th, in 12th, हाँ, उन लोगों को 25,000, 50,000, 1 लाख 2 लाख ये स्कॉलरशिप अवार्ड ये दिया जाता है। सो तब आप जज कर पाएंगे ये अचीवमेंट टेस्ट यूज होने के बाद। नेक्स्ट इज यूजफुल इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू चूज suitable सब्जेक्ट्स और कोर्स अकॉर्डिंग टू टीचर्स अचीवमेंट लेवल। हाँ, आपका ग्रेजुएशन में 2 मेथड सब्जेक्ट है, एक ऑनर्स सब्जेक्ट था, सॉरी क्लास 12 में आपका 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में बंगाली, इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मान लीजिए कोई एक ऑप्शनल। तो ये 5 सब्जेक्ट में आप जो सब्जेक्ट आपको अच्छा होगा, मान लीजिए आपका इंग्लिश में 65% मिला है, हिस्ट्री में मिला है 82% और जियोग्राफी में मिला आपका 92%। तो जब आप ऑनर्स लेंगे, जब आप कॉलेज में एडमिशन होंगे, उस समय आप अप्लाई करेंगे। आपका इच्छा है इंग्लिश लेने का, लेकिन आपका परसेंटेज बहुत कम है। सो आपको हेल्प कर रहा है, देखिए, यूजिंग इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू चूज सुइटेबल सब्जेक्ट फॉर कोर्स। दैट मीन्स आप जो जियोग्राफी में 92 आपको मिला है, दैट मीन्स जियोग्राफी का नॉलेज आपके पास है। तो इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है आप जियोग्राफी लेके आप पढ़िए, जियोग्राफी लेके आप पढ़ेंगे तो बहुत आगे जाएंगे आगे जाएंगे। सो ऐसे हम चूज़ करते हैं, ऐसे हम बच्चे को गेस भी कर सकते हैं ये बच्चे कौन सा लाइन में जा सकते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस का बच्चे, उसका टैलेंट है बहुत, इंजीनियरिंग, जैसे कि इंजीनियरिंग टैलेंट है उसका, उसका जो पढ़ाई का उसका जो रिजल्ट का है बहुत ही अच्छा है। तो हम देखते हैं उस बच्चे कहाँ जाएगा, इंजीनियरिंग में जाएगा या मेडिकल में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम थोड़ा गेस कर पाते हैं। एंड लास्ट वन इज टू एनेबल द पेरेंट्स टू नो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर एकेडमिक अचीवमेंट। एक्चुअली पेरेंट्स को भी ये रिजल्ट मिलता है, मेरा बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं, ये प्रोग्रेस हो रहा है या रिग्रेस हो रहा है। सो दीज आर द यूज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अचीवमेंट टेस्ट। सो प्लीज़ फॉलो द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए गुड अचीवमेंट टेस्ट। थैंक यू।